Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज़ वॉच टिल एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज इन May 2021 मियो का 12 रेलवे स्टेशन वॉज रीनेम्ड टू महेश नगर रेलवे स्टेशन. वेयर इज़ इट लोकेटेड? ओके, मई 2021 में मियो का 12 रेलवे स्टेशन को महेश नगर रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया है. ये कहाँ पे स्थित है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज राजस्थान. द नेम ऑफ मियो का 12 रेलवे स्टेशन इन राजस्थान जोधपुर हैज़ बीन चेंज्ड to Mahesh Nagar after getting an approval from various department, a senior government official said. Okay. मियो का 12 रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर राजस्थान के जोधपुर का ये स्टेशन था, जिसका नाम बदलकर अब महेश नगर कर दिया गया है. ओके, ऑफिशियल हायर डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बाद. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इंडिया कैरिड आउट अ मिलिट्री ड्रिल with which country in the southern Arabian Sea with a focus on further improving their interoperability. Okay. हाल ही में इंडिया ने मिलिट्री ड्रिल किया है, जो कि साउदर्न अरेबियन सी में उन्होंने किया है, जिससे उनका फोकस है कि इंटेरोपेरेबिलिटी इम्प्रूव हो सके. सो हेयर आर द ऑप्शंस: इंडोनेशिया, श्रीलंका, चाइना एंड जापान. So here the correct answer is option A, Indonesia. The navies of India and Indonesia carried out a military drill in the southern Arabian Sea with a focus on further improving their interoperability. Okay, so India और Indonesia के navies ने मिलकर southern Arabian Sea में ये military drill किया है. So now goes the next question and here the next question is which bank has entered into a strategic tie-up with UAE based Mashreq Bank to facilitate money transfer from the UAE. UAE से मनी ट्रांसफ़र के लिए किस बैंक ने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक टाई अप किया है मशरिक बैंक के साथ? सो हेयर आर द ऑप्शंस: HDFC बैंक, फेडरल बैंक, RBL बैंक, ICICI बैंक. So here the correct answer is Federal Bank. Federal Bank said it has entered into a strategic tie-up with UAE based Mashreq Bank to facilitate money transfer from the UAE. Okay, Federal Bank ने बताया कि उसने strategic tie-up किया है UAE based Mashreq Bank के साथ, ताकि मनी ट्रांसफ़र हो सके UAE से. So now goes the next question and here the next question is which company has announced the launch of COVID-19 vaccine finder, an integrated platform to help citizens check the availability of vaccination slots on its mini app store. किस कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो लॉन्च करेंगे कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर अपने ही प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि वो वैक्सीनेशन स्लॉट्स को पता लगा सके कि कौन से वैक्सीनेशन स्लॉट्स हमारी जगह पे अवेलेबल है. सो हेयर आर द ऑप्शंस: गूगल, पेटीएम, एप्पल एंड डिलॉयट. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ओके, here the correct answer is option B. Digital payments platform Paytm has announced the launch of COVID-19 vaccine finder, an integrated platform to help citizens to check the availability of vaccine slots on its mini app store. Okay, Paytm ने ये फैसिलिटी शुरू की है जिससे कि कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर उन्होंने अपने लॉन्च में स्टार्ट किया, जिससे सिटीजन्स अपने वैक्सीन स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which bank announced the launch of I Choose My Number feature for all its customer across India? किस बैंक ने I Choose My Number फीचर शुरू किया है पूरे इंडिया के सभी कस्टमर्स के लिए? सो हेयर आर द ऑप्शंस: पेटीएम पेमेंट बैंक, ICICI बैंक, फिनकेयर पेमेंट्स बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक. So here the correct answer is Jana Small Finance Bank announced the launch of I Choose My Number feature for all
इट्स कस्टमर्स अक्रॉस इंडिया। ओके, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है आई चूज माई नंबर फीचर अपने सारे इंडिया के कस्टमर्स के लिए। सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर रिसेंट यूएन रिपोर्ट इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट हाउ मच % इन 2022। 2022 में इंडिया की ग्रोथ कितनी बताई गई है एज पर द यूएन रिपोर्ट। So here are the options 10.5%, 9.8%, 10.1% and 9.5%. So here the correct answer is 10.1%. India is forecast to grow at 10.1% in 2022, becoming the fastest growing major economy in the world, the United Nations said, but cautioned that the growth outlook of 2021 was highly fragile as the country was a new hotbed of the pandemic. इंडिया में इतनी पैंडमिक बढ़ने की वजह से यूएन नेट के अकॉर्डिंग इंडिया की 10.1% बताई गई है ग्रोथ रेट। ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जापानीज ब्रोकरेज नोम्यूरा रिवाइज्ड इट्स जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट फॉर इंडिया फॉर द करेंट 2022 फिस्कल टू हाउ मच %। जापानी की एक ब्रोकरेज नोमुरा ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2021-22 को फिस्कल में कितनी % बताई है। सो हियर आर द ऑप्शंस 10.8%, 10.5%, 11.5%, 12.3%. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जापानीज ब्रोकरेज Nomura cut its GDP growth estimate for India for the current 2021-22 fiscal to 10.8% from the earlier 12.6%, blaming the impact of second wave induced lockdown. Second wave की लॉकडाउन की वजह से 12.6% से इसका ड्रॉप डाउन होकर 10.8% कर दिया गया है इंडिया का GDP ग्रोथ। So now goes the next question and here the next question is Moody's Investors Service slashed India's growth forecast for the current financial year to how much %? Moody की इन्वेस्टर सर्विस ने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए कितनी % कर दी है। सो हेयर आर द ऑप्शंस 8.7%, 11.0%, 9.3% and then 10.2%. Okay, so here the correct answer is 9.3%. Okay, Moody's Investor Service slashed India's growth forecast for the current financial year to 9.3%, saying that the second wave of coronavirus infections hampers economic recovery and increases risk of long-term scarring. Okay, तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ने कितनी कर दी है 9.3%, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हर जगह कम हो रहा है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन प्लेस्ड बाय ड्रग मेजर एस्ट्राजेनिका इन ह्यूमैनिटेरियन एड टू इंडिया टू सपोर्ट रिलीफ एक्टिविटीज़ अमिड द सेकेंड वेव कोविड-19 के सेकेंड वेव में बचने के लिए इंडिया ने कितने रुपए का ड्रग प्लेस किया एस्ट्राजेनिका के साथ, कितनी अमाउंट की सपोर्ट रिलीफ की है। सो हियर आर द ऑप्शंस 25 million, $250,000, $245,000, $300,000, $295,000. So here the correct answer is $250,000. Drug measure AstraZeneca said it has placed $250,000 over rupees 1.8 crore in humanitarian aid to India to support relief activities amid the second wave of COVID-19 sweeping across the country. जब सेकेंड वेव ख़त्म होगा तो उसके बाद हेल्प हो इंडिया का, इसके लिए ये इतना डोनेट किया उन्होंने, ठीक है, सपोर्ट दिया। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट वाज डोनेटेड बाय ट्विटर टू हेल्प एड्रेस द कोविड-19 क्राइसिस इन इंडिया। इंडिया में कोविड-19 क्राइसिस से बचने के लिए ट्विटर ने क्या मदद किया है। सो हियर आर द ऑप्शंस $35 million, $30 million, $20 million, $15 million. So here the correct answer is $15 million. Microblogging giant Twitter has donated $15 million to help address the COVID-19 crisis in India, which is battling the unprecedented second wave of deadly pandemic. पैंडेमिक के सेकेंड वेव से लड़ने के लिए ट्विटर ने कितना दिया है, $15 million. ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Subscribe our Trust Logics tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.